Hey everybody, and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. Our first story comes from Zoho. Zoho Corporation, a SaaS company, has achieved an incredible milestone of becoming the first bootstrap SaaS firm to serve over 100 million users across its 55 plus business applications. This achievement is even more remarkable as it was accomplished without an even external funding. Zoho's growth journey from 1 million users in 2008 to an impressive 100 million user mark is truly impressive. The company is now boasts over 700,000 customers in 150 plus countries with a rapid expansion in the Middle East and North America, particularly in UAE and Saudi Arabia and Egypt. CEO Sridhar Vembu expressed his gratitude to their loyal customer and hinted at an exciting innovation in the pipeline. Zoho, जैसे कि आपको पता है कि इंडियन बूटस्ट्रैप कंपनी कह सकते हैं जिन्होंने एक भी रुपए फंडिंग में नहीं उठाया है. वो सैस कंपनी है और वो साउथ इंडिया में एक गांव से स्टार्ट हुई है कंपनी. एंड उस कंपनी ने 100 मिलियन यूज़र का जो मार्क है वो क्रॉस किया. 100 मिलियन यूज़र दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, किसी भी सैस कंपनी के पास नहीं है. और उनके ओवर 55 प्लस बिजनेस एप्लीकेशन पे एग्रीगेट 100 मिलियन प्लस यूजर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी प्राउड वाली बात हो जाती है इंडिया के लिए. एंड अक्रॉस 700,000 कस्टमर्स अक्रॉस 150 प्लस कंट्रीज पे जो हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है. इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इतनी अच्छी कंपनी अगर आती है इंडिया से तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज़रूर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलता है. और देखते हैं जोहो का और क्या प्लान रहता है, क्योंकि जोहो के जो CEO है श्रीधर जी ने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि वो अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी ला सकते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से जो अलग अलग डोमेन में भी अपना कदम रखता है और किस तरह से मार्केट को चेंज करता है. सबसे ज़्यादा प्राउड वाली बात और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये फंडिंग, इस कंपनी ने फंडिंग नहीं उठाई है और बिना फंडिंग के काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है अब तक इस कंपनी की. और फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रही है जोहो के लिए. और इस कंपनी जोहो की वजह से इंडियन स्टार्टअप को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगी. मूविंग ऑन, banking data from the Reserve Bank of India (RBI) reveals a significant trend in the banking sector. Bank credit growth has outpaced deposit growth during the April-August 2023 period. Bank deposit increased by 6.6% to reach 149.2 lakh crore rupees, while bank credit surged by 9.1% to rupees 124.5 lakh crore. The phenomena partially attributed to the HDFC Bank merger, and it has led to an increasing wedge between the credit and the deposit growth. As a result, the fixed deposit rate are expected to rise and the bank are expanding their branches network to ensure the credit growth remain robust. न्यूज़ आ रही है RBI की तरफ से कि जो FD है, फिक्स डिपॉजिट है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, क्योंकि जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है, मतलब जो अमाउंट डिपॉजिटेड है इंडियन बैंक्स में वो है 149.2 लाख करोड़ रुपीस, और जो अमाउंट दिया गया है एज अ लोन वो है 124.5 लाख करोड़ रुपीस. तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है, लगभग 25 लाख करोड़ का इंक्रीमेंट है डिपॉजिट अमाउंट में. तो इसके वजह से एक ज़्यादा अच्छी खबर और एक ज़्यादा उम्मीद की बात है. और RBI भी कहता है कि इसके वजह से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर. नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम NVIDIA. Two tech giant NVIDIA and Reliance has announced a groundbreaking AI partnership. NVIDIA will provide the necessary computing power, while Reliance Jio Unit will manage and maintain the AI infrastructure. This collaboration aims to create a language model, generative app, and cloud infrastructure platform for AI development in India.
The partnership extended beyond just telecom as the Reliance will develop AI application and services for 450 million Jio customers. Additionally, they will provide energy efficient AI infrastructure to scientists, developers and startups across India, addressing the growing demand for AI capabilities in the country. बहुत ही ज़्यादा बड़ा न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इंडिया में जो रिलायंस और एनवीडिया काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है, जो कि जीपीयूज बनाती है, कंप्यूटिंग सिस्टम बनाती है, और स्पेशली एनवीडिया का जो मार्केट है वो एआई पे भी, मतलब एनवीडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एआई के ऊपर। और न्यूज़ ये है कि एनवीडिया और रिलायंस का कोलैबोरेशन होने वाला है, पार्टनरशिप होने वाला है, और इंडिया में वो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाला है, और इसमें रिलायंस काफ़ी ज़्यादा सहायता हेल्प करेगी। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा न्यूज़ है और इससे काफ़ी ज़्यादा 450 मिलियन जियो कस्टमर को बेनिफिट हो सकता है। और इंडिया में एआई का जो रेंज है, एआई का जो फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप ले सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है और फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इंडिया के लिए अगर ये डील सक्सेसफुल होती है एआई सेक्टर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ व्हिच इज फ्रॉम द चाइना. China's largest property developer are experiencing several financial challenges, with the lawsuit accumulating as the businesses and the worker are owed substantial sums. The root of this crisis lies in the government's effort to reform and re-leverage the property sector, aiming to prevent a housing bubble. The real estate plays a crucial role in the China's economy, contributing 30% of its GDP, with roughly 80% residents' wealth tied in this sector. Companies like China Evergrande Group had filed for bankruptcy, reflecting the industry's ongoing transaction as China seeks to reduce its reliance on the real estate. एक काफ़ी बड़ा न्यूज़ आ जाता है चाइनीज़ रियल स्टेट सेक्टर से। इन ऑल चाइनीज़ रियल स्टेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है चाइनीज़ इकोनॉमी में, और रियल स्टेट कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ द जीडीपी। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है, और इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज हाल ही में हमने देखा है कि बैंकक्रप्सी फाइल करते हुए, बड़े बड़े रियल स्टेट कंपनीज को हमने देखा बैंकक्रप्सी फाइल करते हुए। उनमें से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है जो कि प्रोमिनेंट प्लेयर है रियल स्टेट में, चाइनीज़ रियल स्टेट में, एवरग्रेड। उस कंपनी ने रियल स्टेट कंपनी ने बैंकक्रप्सी फाइल किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली बात है, क्योंकि 2008 में जो हमने देखा था यूएस में रियल स्टेट बबल जो था वो बस्ट किया था, और काफ़ी पूरे मार्केट को हिला दिया था, जस्ट ग्लोबल मार्केट तक को हिला दिया था रियल स्टेट बबल की वजह से। देखते हैं ये रियल स्टेट बबल नेक्स्ट रियल स्टेट बबल होता है या नहीं, और किस तरह से इस सिचुएशन को चाइनीज़ गवर्नमेंट हैंडल करती है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंटरेस्टिंग देखना रहेगा किस तरह से ये मैनेज किया जाता है। So that's the wrap for today's video. Hope you like this video. If you do, please click the like button and don't forget to subscribe to my channel to never miss any video from this channel. So this was Tariq onto your screen, and thank you for watching.